Hello guys, as my name is Sheenam, your biology teacher. Today we will start with the very important topic named as endocrine system. As in my previous videos, you are clear with the nervous system. Now we will start with the next part of control and coordination chapter, and the topic is endocrine system. This is the very interesting topic and it is very useful for the examination point of view. So let's get started. Be energetic. Open your notebooks. Prepare your notes side by side. Our topic is endocrine system. Before starting with the endocrine system, we should know what is gland, what are hormones, what are the types of glands, what are their functions. Then we will start with the certain specific glands and their functions. So, firstly, what is gland? Gland is a structure which can secrete its substances into the blood. ठीक है? ग्लैंड एक ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है. सब्सटेंसेस मींस एनी केमिकल और एनी हार्मोन. ठीक है? उसके बाद व्हाट आर हार्मोन्स? Hormones are chemical substances which act as messengers in our body. ये हमारी बॉडी तक क्या लेके जा रहे हैं? मैसेज लेके जा रहे हैं. ठीक है? हॉर्मोन्स हमारी बॉडी तक मैसेज लेके जाते हैं. उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? द ग्लैंड विच secretes its products into the duct. इनको क्या बोलते हैं? विद डक्ट. डक्ट क्या होता है? कोई भी ट्यूब या कोई भी नाली, कोई भी डक्ट जिसके थ्रू एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने सब्सटेंसेस, अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और ये डक्ट क्या करती है? अपने स्पेसिफिक पार्ट के पास उस सब्सटेंस को लेके जाते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड. Salivary gland is an example of exocrine gland which secretes saliva into the duct. So, exocrine glands are known as with duct glands. Second, endocrine glands. These are ductless glands. It means that endocrine glands secretes its hormones or substances or chemicals directly into the blood without any duct. So that's why they are known as ductless glands. Many endocrine glands are present in our body and performing certain functions. For example, hypothalamus, pituitary, thyroid gland, adrenal gland. All these are the examples of endocrine glands. So our main topic is endocrine gland. We have to start with the endocrine gland, in which we have to study various hormones and their functions. Before starting with endocrine gland, let me tell you that in the endocrine gland, some glands are performing the functions of both exocrine as well as endocrine. Those glands which perform the function of both exocrine as well as endocrine, they are known as heterocrine gland, like pancreas. Pancreas is a gland which functions as both exocrine as well as endocrine. Second, testes and ovaries are also considered among heterocrine glands because they are also performing functions of both endocrine as well as exocrine. I will tell you their functions, then I will tell you how they act as exocrine and endocrine. So, अभी तक हमने क्या पढ़ा? Exocrine gland, salivary gland, endocrine gland, pituitary, thyroid, hypothalamus, and heterocrine gland, pancreas, testes, ovaries. Okay. Now let's start with endocrine system, in which our first is hypothalamus. हमने hypothalamus को brain में भी पढ़ा था. It is a part of diencephalon of forebrain in which hypothalamus performs various important functions. ठीक है?
अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन के ये वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके नीचे क्या पड़ा है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। सपोज दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी। हमारा ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी। इट एक्ट एज सुप्रीम कमांडर बिकॉज ये कमांड देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को भी तुमने अब ऐसे करना है, तुमने अब हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना है, अब तुमने हॉर्मोन्स को सिक्रीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरॉन्स पड़े हैं, इन न्यूरॉन्स की स्टॉप क्या कर रही है, पिट्यूटरी में जाके खुलती है, ठीक है। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस साइड पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी and this is posterior pituitary, ठीक है। अब सुनो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, इसके पास ऐसे हार्मोन्स या ऐसे सब्सटेंसेस पड़े होते हैं जो क्या करते हैं, पिट्यूटरी को सिग्नल भेजते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड अब तुम काम करने के लिए रेडी हो या अब तुम काम करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। तो बस इसका क्या काम है, इट रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ सेकंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। Pituitary gland is also known as master gland. Why pituitary gland is known as master gland? Because it control and coordinate the activities of all other glands. But hypothalamus को हम master gland नहीं बोलते because ये सिर्फ pituitary को control करता है, but pituitary को हम master gland बोलते हैं because ये नीचे के जितने बचे ग्लैंड्स हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सारों को कौन कोऑर्डिनेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। As we know that pituitary gland is a pea-shaped structure lies below the hypothalamus in the brain. It has two chambers, anterior pituitary and posterior pituitary. एंटीरियर पिट्यूटरी को जब हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस दो तरह के सिग्नल भेजता है, ये GRH एंड GIH भेजता है। GRH मींस ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन एंड GIH मींस ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। जब तो हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन भेजा तो पिट्यूटरी क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करेगा एंड ग्रोथ करवाएगा, हमारे बॉडी की मसल्स की सेल्स की ग्रोथ करवाएगा। बट एज हमारी बॉडी में एक सिस्टम फिट है कि ना ही तो ओवर ग्रोथ होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, तो हमारा सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम क्या करता है, हाइपोथैलेमस GIH सिक्रीट करता है, GIH ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। तब ये पिट्यूटरी को बोलता है कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट मत करो, हमने ग्रोथ अब रोकनी है। तो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ तब नहीं करवाता एंड ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। बट समटाइम्स मशीनरी में कोई डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर दे, ओवर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर दे, तो हमें क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिजेंटिज्म। पर्सन बिकम जियान, जैसे खली बहुत लंबा है वो जियान, ठीक है, जिजेंटिज्म हो जाती है, हमें बहुत ओवर ग्रोथ हो जाती है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है, इतने अमाउंट में नहीं रिलीज होता, पर्सन की हाइट क्या रहती है, कम रह जाती है, लेस ग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, पर्सन बिकम ड्वार्फ, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू। Pituitary gland have anterior pituitary which secrete growth hormone. Growth hormone helps in the growth of muscles and body cells, ठीक है। But sometimes when there is excess of growth hormone, it will leads to a disease known as gigantism. But if there is less growth hormone, it will lead to a height of person short, which is known as dwarfism, ठीक है। Okay. Next is posterior pituitary. Posterior pituitary में क्या हो रहा है हमारे पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने आप कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास हार्मोन्स कहां से आते हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन्स को भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो हार्मोन्स क्या है, स्टोर रहते हैं।
दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स की हेल्प से क्या कर रहा है, हार्मोन्स को इधर भेज रहा है। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स क्या रह रहे हैं, स्टोर रहे हैं, बनते नहीं है बट स्टोर इधर होते हैं। बनते कहाँ ये वाले हार्मोन, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में से हार्मोन कहाँ आ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंड वो स्टोर रह रहे हैं। कौन कौन से हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं एंड इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। इट्स लेवल गेट इंक्रीज्ड व्हेन वी आर इन लव, ठीक है। इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। वेसोप्रेसिन, इसको एडीएच भी बोलते हैं। एडीएच क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब हम ये किसकी बात कर रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर आपको याद रखना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। जैसे ये क्या करता है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का बर्थ होता है तब ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड यूट्रस जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं जो हेल्प करते हैं बेबी की डिलीवरी में। फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, इट ऑल्सो helps in the contraction of mammary glands to secrete milk from the breast to the baby, ठीक है। ये इसके फंक्शन है, that's why it is also known as milk ejecting hormone. Second is vasopressin. वेसोप्रेसिन क्या होता है, ये हार्मोन क्या करता है, हमारे किडनीज में हेल्प करता है। हमारे किडनीज का क्या फंक्शन है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस। हम क्या चाहते हैं, हमारी किडनीज चाहती है कि यूरिन में एक्सेस ऑफ वाटर ना रिलीज हो, हम अपने वाटर को सेव करके रख लें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये वेसोप्रेसिन क्या करता है, रीअब्सॉर्ब द वाटर एंड आयंस फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। बट जब ये वेसोप्रेसिन सही से काम नहीं करता, ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं करवा पाता, तो ये एक डिजीज करवा देता है, डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज इंसिपिडिस, इसमें क्या हो जाता है, पर्सन रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन द यूरिन। यूरिन क्या हो जाता है, काफी ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है एंड बॉडी में क्या हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीटेड। More of this, then we have to start with next. We had completed with hypothalamus and pituitary. ये दोनों हमारे कहाँ थे, ब्रेन में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, हमारे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थर्ड है हमारा थायराइड ग्लैंड, प्रेजेंट इन द नेक। पहले ब्रेन से चलते चलते नेक में आ गई थायराइड ग्लैंड। ये हमारा वॉइस बॉक्स, लेरिक्स, ये हमारी विंड पाइप। विंड पाइप को ऐसे थायराइड ने कवर किया हुआ है। थायराइड के 2 लॉब्स हैं, विंड पाइप के इधर को भी आ रहा है, वो इधर को भी आ रहा है। दिस इज थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द नेक ऑफ द पर्सन एंड इट सिक्रीट्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज ऑल्सो नोन बाय T4। थायरॉक्सिन कैसे बनता है बॉडी में, थायरॉक्सिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन होगी तभी क्या है, थायरॉक्सिन बनेगा। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन रेगुलेट द BMR। व्हाट इज BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। अब देखो, हम प्रोटीन्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सब कुछ ले रहे हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी डाइजेशन, उसका सब कुछ कौन मेंटेन करता है, थायरॉक्सिन मेंटेन कर रहा है, जो किससे सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। हमारी बॉडी का BMR कौन मेंटेन करता है, थायरॉक्सिन मेंटेन करता है। बट ये डिजीज बहुत कॉमन है, थायराइड आजकल लोगों को सबको हो रहा है। क्यों हो रहा है, हमारी बॉडी में प्रॉपर आयोडीन नहीं जाती है, ठीक है। आयोडीन कैसे जाती है, हमारा जो सॉल्ट होता है ना, टाटा सॉल्ट, उसमें आयोडीन मिक्स है। पहले क्या होता था, आयोडीन वो सॉल्ट
आयोडाइज्ड नहीं होता था, तो लोगों को बहुत ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम रहती थी। बट अब हमने क्या किया, 0.01% ऑफ आयोडीन मिक्स कर दिया हमारे सॉल्ट में, सो दैट हमारी बॉडी में क्या है, सॉल्ट जा सके, आयोडाइज्ड सॉल्ट जा सके, एंड वो आयोडीन क्या करे, थायरॉक्सिन बनाने में हेल्प करे। बट if there is a lack of iodine in our body, then there will be lack of thyroxine in the body, and there will be lack of body metabolic rate in the body, and it will lead to a disease known as goiter. ठीक है, जो नेक ऑफ की पर्सन है ना, वो क्या हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी। ठीक है, स्वोलन नेक हो जाएगी, जिसको हम जिस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया तुम्हें, थायराइड इज अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द नेक. It secretes hormone named as thyroxine. Its function is to maintain body metabolic rate, but there deficiency of thyroxine in the body causes goiter disease. Goiter disease का symptom क्या है, swollen neck. ठीक है, thyroxine कैसे बनता है, in the presence of iodine. Iodine हमें कैसे मिलती है, salts. But if there is lack of iodine, there will be a disease known as goiter. ठीक है, उसके बाद हमने थायराइड के पास बैक साइड ऑफ द थायराइड क्या पढ़े हैं, ऐसे करके स्वेलिंग्स पढ़े हैं। एक लोब में 2 स्वेलिंग्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड. पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, विच इज प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. 4 पैराथायराइड ग्लैंड है हमारे बॉडी में. ठीक है, ये क्या है, पैराथायराइड प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एंड एक लोब में 2 पड़े हैं, 4 पैराथायराइड ग्लैंड. ये कौन सा हार्मोन क्रिएट करते हैं, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन. What is the function of PTH? It maintains calcium and phosphorus balance in the blood. हमारे ब्लड को, बोन्स को क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए. उस लेवल को कौन रेगुलेट करता है, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड. ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, पीटीएच को सिक्रीट करते हैं. पीटीएच क्या करते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है हमारे ब्लड में. ठीक है, क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है थाइमस. फिफ्थ इज थाइमस. थाइमस इज ऑल्सो अ ग्लैंड जो हमें क्या रिलीज करता है, थाइमस हार्मोन. कहां पड़ा है, बिटवीन द लंग्स. कौन सा हार्मोन क्रिएट करते हैं, थाइमस हार्मोन. ठीक है, फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड अस इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होता है, बचने की शक्ति. किसी भी डिजीज से बचने की शक्ति को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं. ठीक है, अब एक बात सुनो, ये थाइमस होता है ना, जो बच्चे होते हैं उनमें तो थाइमस का साइज बहुत ज्यादा होता है. बट जब पर्सन ओल्ड एज में जाता रहता है, थाइमस का जो साइज होता है ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है. ठीक है, द साइज ऑफ द थाइमस गेट रिड्यूस्ड एज द पर्सन बिकम इन ओल्ड एज. ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, ओल्ड पीपल को बीमारियां ज्यादा जल्दी लगती है क्योंकि उनमें थाइमस कम होते जा रहा है. तो थाइमस कम होते जा रहा है तो इम्यूनिटी भी कम होती जा रही है. ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थाइमस, इट सिक्रीट्स दोज काइंड ऑफ सेल्स which provide us immunity against any kind of infection. ठीक है, next the very important and interesting one is adrenal gland. As kidneys are present, है ना, हमारा नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड. हमने क्या किया, एड्रीनल ग्लैंड, सिक्स्थ हमारा टॉपिक एड्रीनल ग्लैंड. These a pair of kidney is present
प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, हर एक किडनी के ऊपर एक एड्रीनल पड़ता है, ठीक है। तो मतलब अ पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, एक पेयर एड्रीनल ग्लैंड का हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ऑन द अपर साइड ऑफ बोथ द किडनीज। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? एड्रीनलिन। इट सेक्रीट्स हार्मोन एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में, ब्रीदिंग रेट, स्ट्रेस कंडीशंस, इन सबको क्या है मेंटेन करके रखता है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, सबको एड्रीनल मेंटेन करता है। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशंस, जैसे इफ एनी डॉग इज बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कोई डॉग पड़ गया तो तुम क्या करोगे? डर जाओगे, तुम वहां से भागोगे। क्यों भागोगे? क्योंकि तुम्हारा एड्रीनलिन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है। In the stress conditions, adrenaline's amount is increased at the top level, and then your heartbeat will increase, your breathing rate will increase, you are in stress, etc. ठीक है? So let me tell you, adrenaline is also known as emergency hormone. It is also known as 3F. What is 3F? Fright, कोई डर जाना, flight और फाइट। या तो आप उस इमरजेंसी कंडीशन में, एनी डॉग इज बिहाइंड यू, या तो आप लड़ोगे वहां पे, या फिर आप भाग जाओगे या डर जाओगे। ये क्या होगा? 3F। कौन सीक्रेट कर रहा है? एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। ये क्या करता है? हमारी हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन ये क्या करता है? अपना लेवल बहुत इंक्रीज कर लेता है जब हमें किसी चीज का स्ट्रेस हो। स्ट्रेस हो गया तो ब्रीदिंग रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक। Digestive system, this is stomach, and below the stomach this leaf like structure is known as pancreas, ठीक है। अब हमने pancreas क्या करना है? Pancreas lies below the stomach. This gland is a heterocrine gland. What are heterocrine glands? The glands which perform the function of both endocrine as well as exocrine. सबसे पहले पैनक्रियास कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागन. The hormones secreted by pancreas are insulin and glucagon. ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. It lowers the blood sugar level. अब देखो हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज ले रहे हैं, शुगर्स खा रहे हैं, हमारे ब्लड में जा रहे हैं. एक्सेस ऑफ शुगर कैन कॉज अस डायबिटीज. ठीक है, बट हम शुगर्स तो खाते हैं, हमारी शुगर्स को कौन मेंटेन करता है? हमारे ब्लड से. हमने जैसे ये ब्लड में शुगर इतनी ज्यादा चली गई, जल्दी जल्दी हमारे ब्लड से शुगर को सारे सेल्स में पहुंचा देती है कौन? इंसुलिन. ठीक है, तो इंसुलिन क्या करती है? लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल. इफ इंसुलिन की कमी हो जाए बॉडी में तो हमें क्या हो जाएगा? डायबिटीज. मैंने तुम्हें वो करवाया था ADH, है ना, उसमें मैंने तुम्हें बताया था एक डिजीज हो जाती है अगर किडनी अच्छे से काम ना करे, डायबिटीज इंसिपिडस. बट अगर इंसुलिन अच्छे से काम ना करे तो कौन सी डिजीज हो जाती है? डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, ये क्या होगा? अगर कॉमन सी डायबिटीज हुई है, थोड़ी सी शुगर है, तो हम वेट रिड्यूस करके, शुगर कम खा के, एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं. बट इफ इंसुलिन इज नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर अमाउंट एंड शुगर इज इंक्रीज, तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं. ठीक है, उसके बाद ग्लूकागन, ये इसका कॉम्पनसेटरी हार्मोन है. ग्लूकागन क्या करता है? इट रेजेस द ब्लड शुगर लेवल. मतलब कभी कभी हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो सारे सेल्स में से शुगर को सारे सेल्स में से शुगर को ब्लड में लेके कौन आता है? ग्लूकागन. तो ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है. ठीक
ऑपोजिट काम करते हैं बट दोनों क्या है, जरूरी है। ओके, इस टाइम तो ये इंसुलिन क्या काम कर रहा है, एंडोक्राइन एक्ट कर रहा है, ठीक है। बट व्हेन डज इंसुलिन एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एज वी नो दैट पैनक्रियास क्या करता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस में, दैट पैनक्रियास के पास क्या होती है, पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, एंड वो पैनक्रियाटिक जूसेस को इस डक्ट के थ्रू कहां भेजते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या आ रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो डक्ट के थ्रू काम करे वो कौन सा होता है, एक्सोक्राइन। तो ये दोनों विदाउट डक्ट काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए, एंडोक्राइन, एंड ये क्या विद डक्ट काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सोक्राइन। सो लेट मी टेल यू, pancreas act as a heterocrine gland because it performs the functions of endocrine gland by secreting insulin and glucagon and maintaining the blood sugar level, and it also acts as exocrine gland by secreting pancreatic juices with the help of pancreatic duct into the small intestine and helps in digestion of food. ठीक है, क्लियर। उसके बाद आफ्टर पैनक्रियास वी हैव टू स्टार्ट विद टू लास्ट, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द मेल ओनली एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन द फीमेल ओनली। टेस्टिस, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में सीक्रेट होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को मेंटेन करते हैं, जैसे मुस्टेच, बियर्ड, ठीक है, वॉइस, डीपन वॉइस, ये सारे कैरेक्टर्स के टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करता है। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टिस हार्मोन आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल। बट सो ये हार्मोन ब्लड में जा रहा है तो इट एक्ट एज एंडोक्राइन, बट sperm production with the help of duct or these are releasing out with the help of duct, so this time they act as exocrine, ठीक है। तो testis is also a heterocrine gland because it secretes testosterone hormone with the endocrine system and sperm released by the endocrine system. Next is ovaries. Ovaries are present in the female only. पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट, ठीक है। हमारे बॉडी में पेयर्ड ग्लैंड कौन से, एड्रीनल, टेस्टिस एंड ओवरी, ये तीनों पेयर में, बाकी सारे सिंगल पड़े। ओवरीज कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन का क्या काम है, एस्ट्रोजन हमारे फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है, जैसे फेमिनाइन वॉइस, लेस हेयर ऑन द बॉडी, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स, ठीक है, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एस्ट्रोजन। सेकंड, प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये दोनों हार्मोन क्या है, फीमेल को हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, एंडोक्राइन का काम कर रहे हैं। बट व्हेन ओवरीज एक्ट एज एक्सोक्राइन आल्सो व्हेन इट सिक्रीट एग आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। दिस टाइम दे आर यूजिंग डक्ट, fallopian tubes, they are using duct to release egg outside from the body. So हमने heterocrine gland पढ़े कौन कौन से, testes, ovaries and pancreas. With this our endocrine system is completed. You should also know that how endocrine system is maintained or self regulated. मतलब ये हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो ना ही तो हार्मोन को एक्सेस में सीक्रेट होने देती है, ना ही कम होने देती है। लेट मी टेल यू लास्ट टॉपिक, फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या हो रहा है, देखो, हाइपोथैलेमस किसको एक्टिवेट करता है, अब तुम्हें पता है, ये पिट्यूटरी को, इंटीरियर पिट्यूटरी को। इंटीरियर पिट्यूटरी किसको कर रही है, थायराइड को स्टिमुलेट करती है। थायराइड क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन रिलीज करता है। यही हमने पढ़ा है ना। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना।
पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सबको मेंटेन करती है, थायराइड को भी मेंटेन करती है। थायराइड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। तो अगर थायरॉक्सिन की जरूरत है बॉडी में फिर तो ये आएगा, ठीक है, ये सिस्टम चलेगा। अगर थायरॉक्सिन की जरूरत नहीं है तो थायरॉक्सिन क्या है, अपने आप सिग्नल भेजेगा कि नहीं, बंद कर दो अब, और सिक्रीशन नहीं होनी चाहिए, ब्लड में थायरॉक्सिन ज्यादा हो जाएगा। दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म। TSH एंड TRH ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस बोल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवा दो। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करवा दिया, TRH करवा दिया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को एक्टिवेट कर दिया। कौन है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड करती है थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट। थायराइड ग्लैंड ने क्या स्प्लिट कर दिया, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या मेंटेन करता है, बॉडी का BMR। बट अगर थायरॉक्सिन की ज्यादा जरूरत नहीं है तो ये क्या बोलेगा, इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा, इसको 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 कि अब बंद कर दो। अगर इसको सिग्नल भेजेगा तो ये इसको नहीं रिसीव करेगा, इसको भेजेगा तो ये इसको नहीं रिसीव करेगा। इट मीन्स दिस इज अ फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इज सेल्फ मेंटेन्ड इन आवर बॉडी एंड हार्मोन्स आर कमिंग इन द मेंटेन्ड अमाउंट, ठीक है। Okay, thanks for watching. If any doubt is there, you can add in a comment section. Okay, thanks.